Hello and welcome back once again to each and every one of you to Steven Sir Makes It Easy, where I hope in the next few minutes I will make this particular chapter called as Final Accounts a little bit more simpler for you in a digestible format. Before I get started, quick reminders. You can always connect with us with our Facebook page, through our Instagram handle, as well as our Twitter handle. I'll do my best to put up something there which may be directly related to our subjects or maybe current news but somehow connected to our subject. Very important is the Telegram channel which is given above. Yes, you should have the Telegram app on your smartphone, or if you're using मम्मी पापा स्मार्टफोन उसके ऊपर टेलीग्राम चैनल का ऐप होना चाहिए. The Telegram channel, the app is used to convey lots of information to you, especially about the lectures which are going to be conducted tomorrow, the day after that. An update is provided, a link is provided on the Telegram channel. You can share it very conveniently with your friends so that your friends also just with a click land up on the channel if there is a lecture connected to them if they are in a different standard. Also, the Telegram channel is used to share the PDF of the question and answer of each and every question and answer which is solved at the end of the chapter together like a textbook. Also, do remember that if you have not subscribed to the channel, definitely subscribe कर लेना, and there is a bell icon. ये bell है तो उसको दबाना ज़रूरी है so that through YouTube notification आपको मिल जाएगा यहाँ पर जब भी एक lecture प्रीमियर किया जाता है. Okay, you can decide whether that particular lecture and chapter is connected to your syllabus or not. And if you do intend to purchase the textbook, link of that textbook for the purchase is provided in the link below. Okay, so that's pretty much it as far as my reminders are concerned. Last but not the least, because this is a chapter of final accounts, I am not starting with question number 1 textbook, let's get started. No, the order will be decided by me. Yes, I will do my best to cover up everything, but before I start with the first question from the textbook, there are a few practice problems which I am doing. If you were there last time, you will remember it. What do I mean by that? There was one question which I did, practice question, very simply put. Textbook में अगर आप उसको Google सर्च करने जाओगे वो देखने वाला नहीं है. प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन ट्रेडिंग अकाउंट समझाने के लिए, टू एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. टुडे आई एम टेकिंग अप अ क्वेश्चन टू एक्सप्लेन टू यू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो वेरी क्विकली आई विल गेट स्टार्टेड. ओके, आपका नोटबुक डेफिनेटली अवेलेबल रखना. ओके, सो फाइनल अकाउंट्स क्या था? क्या था, कैसे बनाया जाता है, उसके उद्देश्य क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, ऑल ऑफ दिस हैज़ बीन सॉल्व प्रीवियसली. दिस इज़ द नक्शा फॉर इट. आई विल टेक द स्टोरी अहेड because that is what is important. What are the contents of final accounts? There is a trading account. What is written on the debit side, credit side, when is it written, कौन से खर्चे आते हैं डेबिट क्रेडिट में, completely explained in the previous lecture. For that, if you missed out, you have to go to the previous lecture. Today's job is this, office and administration. What is office and administration? उसमें क्या क्या खर्चे होते हैं? Don't worry, by the end of today's lecture वो काम भी हो जाएगा. पार्टनर्स का अकाउंट ऑलरेडी डिटेल्ड में सॉल्व किया गया है एट द बिगिनिंग, एंड द रीजंस फॉर द डेबिट एंड क्रेडिट एंड द कैलकुलेशंस, एवरीथिंग हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू. एंड इन माय नेक्स्ट लेक्चर दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू सॉल्व. बैलेंस शीट, एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, क्यों होता है, सब कुछ सॉल्व करेगी. एंड देन जोड़ के एक पूरा सम, एक नहीं, मेनी सम्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक वी विल सॉल्व. सो लास्ट टाइम ये प्यारेलाल जी का क्वेश्चन था. ओके, ये इंडिविजुअल था. आप जब 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करोगे, जो लेवल पर आप पहुंच चुके हो, यू विल नेवर हैव एन इंडिविजुअल. अकेला बंदा नहीं रहेगा, यू विल हैव 1 and 1. 2 लोग तो रहेंगे. दे विल ऑलवेज बी पार्टनरशिप. जस्ट टू कीप इट सिंपल, मैंने ये आपको प्यारेलाल का पढ़ाया है.
From this question, last time, this is what we solved. I tried to put an image in front of you कि what is a trading account. फैक्ट्री होता है, गोडाउन होता है, ऑल दिस चित्रबाजी पिक्चर्स दैट यू सी, ये सब थे आपको ये समझाने के लिए कि अ ट्रेडिंग अकाउंट इज नथिंग बट अ फैक्ट्री का हिसाब किताब. व्हाट आइटम्स कम इन द डेबिट, प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग के साथ जो खर्चे कनेक्टेड होते हैं वो आते हैं. दिस वॉज नॉट अ वेरी लॉन्ग अकाउंट, ओके था, हाफ पेज में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो गया रहेगा, बट वेरी इंपॉर्टेंट today's account. Well, before I get started with today's question, जो ये है काफ़ी लंबा है, okay? Multiple items that I have got to cover up. It says above, prepare profit and loss account of Mr. Lovely. पहले था प्यारे लाल, आज है Mr. Lovely. For the year ended 31st March 2021. When you do the तैयारी, very important, कि सर तैयारी में हमको क्या तैयारी करना है, देन लेट मी शो यू वेरी फास्ट कि आपको क्या तैयारी करना है. हाँ, सो यू कैन राइट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर लवली, डेबिट क्रेडिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21 एंड फॉर वन फुल पेज टॉप टू बॉटम. ओके, ये अकाउंट आप रेडी रखो. लास्ट में दिस इज ग्रैंड टोटल, सो आप ग्रैंड टोटल भी बना के रख सकते हैं बिकॉज टोटलिंग कास्टिंग अनिवार्य है, कंपलसरी है, वी हैव टू डू इट. तो ही हमको इसके अंदर इसका आंसर मिलेगा. व्हाट वाज द आंसर ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट? ग्रॉस प्रॉफिट. व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस अकाउंट? नेट प्रॉफिट. कभी कभी इफ इट्स बैड लक तो नेट लॉस भी आ सकता है, बट दिस इज द तैयारी दैट यू हैव टू डू एंड कीप. टुडे व्हाट आई वांट टू टेल यू, शो यू इज व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो जब तक आप ये ड्राइंग का काम करते हो, थोड़ा नज़ारे में आपको दिखा देता हूँ सो दैट यू नो कि सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफिस का मतलब क्या होता है. सो वेरी क्विकली अ फ्यू सीन्स हियर एंड देयर, आपको भी सुनाई दे, आपको भी दिखाई दे कि ऑफिस में क्या चक्कर होता है. थोड़ा मैं कम बोलूँगा, थोड़ा धीरे बोलूँगा, ताकि ऑफिस में जो जो होता है, जितने लोग रहते हैं, उनके सराउंडिंग में आपको क्या दिखता है. लॉट्स ऑफ टेबल, चेयर्स, बुक्स, फाइल्स, कैलकुलेशन, कभी कभी थोड़ी मस्ती की बातें भी हो जाती है. कभी एक बात होती है, कभी दो बातें हो जाती है, कभी उसमें से एक बात होती है, कभी उसमें से दो बातें होती है. सो दिस इज गिविंग यू एन आइडिया अबाउट व्हाट डू यू सी इन एन ऑफिस. ओके, ऑफिस में लोग क्यों जाते हैं? वेल, रीजन काफी है. ओके, ऑफिस में जाने के लिए. हाँ, तो यहां पे थोड़ा हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा. सो पर्पसेस ऑफ पीपल गोइंग टू एन ऑफिस. वेल, काफी फाइल पेपर्स दिखते हैं, तो लोग वहां पे फॉर्म के लिए जाते हैं, पेपर वर्क करने के लिए जाते हैं. वो पेपर पे काफी बार काफी कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं. ओके, सो आई होप दैट दिस इज गिविंग यू सम पिक्चर अबाउट एक ऑफिस में देयर आर many people working. Those many people are putting suit, boot, tie. Okay, there are many telephones, there are there is a reception desk, there are many people taking calls, there are many people calculating, laptops, वगैरह. So I hope these few images have put something in your mind. कुछ तो आपके दिमाग में डाला है कि ये चीज़ें ऑफिस में नज़र आती है. ओके, थोड़ा अटपटा ऊपर नीचे प्लेबैक हो गया रहेगा, but hopefully you get an idea. So today's question, lots of information. Okay, so all of this is showing what? Well, ऑफिस में जो फैक्ट्री नहीं होता, फैक्ट्री अलग होता है. ओके, ऑफिस में क्या खर्चा होता है? सम थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर. मैन्युफैक्चरिंग के बाद, आफ्टर, ओके, पिक्चर की शूटिंग हो गई, उसके बाद कौन से खर्चे होते हैं? ओके, प्रोडक्ट बना दिया, उसके बाद कौन से खर्चे होते हैं? ओके, दैट इज रिटन इन एन ऑफिस. कैलकुलेशन के खर्चे, ओके, कैलकुलेशन के साथ कनेक्टेड खर्चे,
जो 2%, 5%, 9%, 3%, 10%, कितने परसेंटेज होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोर्ड मास रूल फ्रैक्शन ये वो, एवरीथिंग इज डन इन एन ऑफिस. क्योंकि जैसे कुछ सीन्स पहले थे कि ऑफिस में सूट बूट पहने लो, ओके, बिकॉज नॉट सेइंग सब टाइम सूट बूट पहने रहते हैं. इफ इट इज गोइंग टू बी नॉन एसी ऑफिस तो सूट तो अवॉइड ही करेंगे, बट कैलकुलेशंस, पेपर वर्क, फाइल, ये एक चित्र, ओके, इमेज आई वांट टू पुट इन योर माइंड अबाउट एन ऑफिस. सी, प्लीज डू अंडरस्टैंड. यू मे से बट सर ऑफिस में तो समथिंग एल्स ऑल्सो हैपन्स. ओके, आई अंडरस्टैंड दैट. आई एम नॉट गेटिंग इनटू वेरी डिटेल्स. As far as your this chapter's knowledge is concerned, just trying to tell you कि factory means what. Trading account means factory, and profit and loss account means what. Trade means office. It's not perfectly an office. Perfectly office में सिर्फ पेपर वर्क नहीं, और काफ़ी काम होता है besides calculation, और काफ़ी काम होता है. बट एटलीस्ट ये चैप्टर अंडरस्टैंड करने के लिए आप इतना समझ लो कि ट्रेडिंग का मतलब है फैक्ट्री की जगह फैक्ट्री का हिसाब, एंड P&L मीन्स ऑफिस की जगह ऑफिस का हिसाब. सो लेट मी गेट स्टार्टेड. द वेरी फर्स्ट आइटम, ग्रॉस प्रॉफिट. वेयर डू यू राइट इट? ग्रॉस प्रॉफिट तो ट्रेडिंग अकाउंट में आंसर आया था. हाँ, नाउ प्लीज नोट. हाँ सर, बट वो ग्रॉस प्रॉफिट अलग था, ये ग्रॉस प्रॉफिट, दिस इज अ डिफरेंट सम. डिफरेंट सम, कोई कनेक्शन नहीं है उसमें और इसमें. दैट वॉज ओनली डन टू सॉल्व ट्रेडिंग अकाउंट. This is only being done to solve profit and loss account. Okay, so let me get started. Gross profit, where do we write? 12 lakh. Well, let me very quickly show you. Credit side पे gross profit is always written brought down. वहाँ पे था भाई, वहाँ पे I mean trading account, carried down. यहाँ पे it is brought down 12 lakh. Debit में expenses आते हैं, credit में income. विच एक्सपेंसेस? ऑफिस के खर्चे. ऑफिस में कितने खर्चे होते हैं? होते तो बहुत है. सैलरीज 10,000 ऑफिस का खर्चा है. ऑफिस में जो लोग सूट बूट में आते हैं ना, उन लोगों को सैलरी देना पड़ता है आपको. जो फैक्ट्री में आते हैं नॉर्मली उन लोगों को, वो वर्कर्स होते हैं, उन लोगों को वेजेस देना पड़ता है. ओके, नेक्स्ट, ऑफिस रेंट, ऑफिस का खर्चा हो गया. ऑफिस इंश्योरेंस, ऑफिस का खर्चा हो गया. ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा. तो ऑफिस में तो लिखेंगे, फैक्ट्री में क्यों लिखेंगे हम लोग? सो आफ्टर राइटिंग सैलरीज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेरोल 10,000, ऑफिस का रेंट 8,000, ऑफिस इंश्योरेंस 6,000. It is necessary to take insurance, because if you don't take insurance, if you were staying somewhere in the southern part of India, you may have gone through maybe sometime, even though in staying in cities, through a cyclone. Cyclone होके तो निकलता है in the coastal areas, but the winds cause a lot of damage, where a lot of trees fall, and they fall on cars काफ़ी बार. Okay, there is बाकी पीपल डू लूज लाइफ्स ऑल्सो, क्योंकि कभी कभी घर पे भी गिरते हैं, बिल्डिंग्स पे भी गिरते हैं, बट उसके लिए उसका इंश्योरेंस बहुत नेसेसरी है. जिन लोगों ने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस करवाया है, दे आर लाइक चलेगा, टेंशन नहीं, गाड़ी को नुकसान हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हमको क्या देगा? कॉम्पेंसेशन. तो सिमिलरली देयर इज अ नीड फॉर इंश्योरेंस, बिकॉज व्हेन यू इंश्योर समथिंग, जब आप किसी भी चीज़ का इंश्योरेंस करते हो, नुकसान होने के बाद में, उस चीज़ का नुकसान होने के बाद में इंश्योरेंस कंपनी आपको कॉम्पेंसेशन देती है, ताकि आपका नुकसान थोड़ा कम हो जाता है. नेक्स्ट, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी. ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल काफ़ी होता है. ओके, आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल मे बी 500, 600, 1000, 2000. ऑफिस में इतने बड़े बड़े एसीज चलते हैं, ये खर्चा वहाँ पे बहुत होता है. 4,000. तो खर्चे हैं, डेबिट डेबिट डेबिट, ऑफिस का खर्चा. कंटिन्यू. नेक्स्ट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ सेल्समैन, क्वेश्चन मार्क. व्हेन डज सेल्समैन ट्रैवल? अच्छा, फर्स्टली यू कैन राइट इट इन 1 लाइन, यू कैन राइट इट इन 2 लाइन्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सी, सेल्समैन प्रोडक्ट लेते हैं और डोर टू डोर जाते हैं, ऊपर आपको नजर आ रहा है. ओके, एंड
नॉक नॉक, मैडम यू आर इंटरेस्टेड इन दिस, सर यू आर इंटरेस्टेड इन दिस। प्रोडक्ट उनके पास होता है, तो प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन के पहले ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, प्रोडक्शन के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो सेल्समैन का खर्चा, घूमने फिरने का खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए। 15,000। इफ देर इज सम एक्सप्लेनेशन टू बी डन, obviously I will give that explanation. Audit fees, question mark. Many of you, sir, what do you mean by audit? Why should we write it here? Well, audit means checking, and in our chapter it means checking of accounts. Accounts, where did you write? Office में, ऑफिस में you are writing accounts, डेबिट क्रेडिट जर्नल बिल ये वो, उसका चेकअप जो होता है वो ऑफिस में होता है। Okay, normally a chartered accountant, a senior chartered accountant, a very well educated chartered accountant who knows, is a doctor of accounts, he will come and check. तो फ्री का तो काम नहीं करेगा, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। 5,000 rupees. These are again, I have taken the list of expenses and incomes which is very similar to the format given in the textbook. Okay, so the only difference is मैंने यहाँ पे कुछ amount डाले हैं ताकि हम उसमें से एक आंसर डिराइव कर सके। तो ऑडिट का खर्चा इज चेकिंग ऑफ अकाउंट्स जो ऑफिस में होता है। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। व्हाट डू यू मीन बाय एंटरटेनमेंट? वेल, एंटरटेन करना, इफ यू गो टू एन ऑफिस एंड यू आर मेड टू सिट, बैठो, ओके, यू विल गेट बोर्ड, ओके, यू ट्राई टू सर्च थिंग्स। इफ देर इज अ टीवी गोइंग ऑन, टीवी पे कुछ शो चल रहा है तो यू लुक एट दैट टीवी, थोड़ा टाइम पास हो जाता है, एंटरटेनमेंट। ओके, आप पानी ले लेते हो, मे बी इफ द बॉस ऑफ द ऑफिस इज अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, वो आपको चाय नाश्ता ऑफर करेगा, इडली मेंदू वड़ा सैंडविच ऑफर करेगा। सी, बिकॉज व्हेन यू आर मेड टू सिट समवेयर, आप गए कंप्लेन करने के लिए, आप गुस्से में गए, ओके, आपको बोलेंगे सर आज आपके, आप बैठो, डू यू वांट टी, डू यू वांट कॉफ़ी, आपके लिए मैं समोसा ये कुछ लेके आ जाओ, वड़ा पाव लेके आ जाओ, भजिया लेके आ जाओ, ओके। तो खाने के बाद में थोड़ी शांति आप में आ जाती है, ओके, थोड़ा आप ठंडा हो जाते हो। तो चाय पानी का खर्चा, कॉफ़ी का खर्चा, आई नो कि ये थोड़ा महंगा कॉफ़ी लगता है, बट इट्स कॉल्ड एज एंटरटेनमेंट, थोड़ा टाइम पास हो जाए, ओके। सो ऑफिस में होता है नॉर्मली, क्योंकि कस्टमर्स कंप्लेन करने के लिए ऑफिस में जाते, क्लाइंट बातचीत करने के लिए ऑफिस में आता है। नेक्स्ट, सन्ड्री जनरल मिसलेनियस एक्सपेंसेस। सन्ड्री जनरल मिसलेनियस एक्सपेंसेस मतलब मैनी अ टाइम्स छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, 10, 20, 30, 40 रुपया, 50, 100, 200 रुपया, ओके, उसको अलग अलग लिख नहीं सकते हैं, तो उसको एक कैटेगरी में डालते हैं और उसको सन्ड्री जनरल या तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहते हैं। ये हमेशा ऑफिस में आता है, ओके, ऑलवेज एंड ऑलवेज इन ऑफिस। आपने किसी को टिप दे दिया, वेटर को टिप दे दिया, कोई सामान उठाकर, ओके, अपने कंधे पर ऑफिस में लेकर आया, वजन सामान था, यू सी इनके बहुत मेहनत कर रहा है बंदा, आपने उसको टिप दे दिया, ओके, 50-60, तो वो अलग अलग नहीं लिखा जाता, वो सन्ड्री एक्सपेंसेस जनरल एक्सपेंसेस में ऑफिस में लिखा जाता है। नेक्स्ट, टुडे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैक्ट्री, प्लीज कीप दैट इन माइंड, उसके लिए लेक्चर अलग था, टुडे हमारा ध्यान सिर्फ ऑफिस पे है। फाइन, डिस्काउंट अलाउड, ये वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्काउंट कैसे रहता है वेबसाइट पे? गो टू Amazon, गो टू फ्लिपकार्ट, गो टू एनी, दे विल ऑलवेज से 32% ऑफ, 48% ऑफ, 49% ऑफ। तो परसेंटेज में बात करते हैं, परसेंटेज में मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एवरी कैलकुलेशन कनेक्टेड आइटम, कैलकुलेशन कनेक्टेड आइटम इज डन इन एन ऑफिस, ऑफिस में उसको लिखते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड, ओके, जो आप कस्टमर को अलाउ करते हो, द प्रीवियस वन मिसलेनियस वाज 9,000, आई हैड मिस्ड इट आउट, हाँ, इज अ कैलकुलेशन का काम। आई होप यू कैन सी, भाई साहब बैठ के कैलसी पे कैलकुलेशन कर रहे हैं। यू कैन डू इट ऑन अ स्मार्टफोन, यू कैन डू इट ऑन अ लैपटॉप और डेस्कटॉप। सो कैलकुलेशन का काम ऑफिस में होता है। सो डिस्काउंट अलाउड विच इज अ नुकसान, क्योंकि आप कस्टमर को बोलते हो 5% मत दो, 4% मत दो, ओके, 10% मत दो। एनी discount allowed is one type of calculation. There are many more calculations. Read, commission paid 6,000, interest paid 14,000. ये क्या है? Calculation.
कितना कमीशन दिया आपने, 2%, 3%, 4%, कभी कभी एजेंट को देना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट आपने बैंक को दिया, ओके, आपने किसी से पैसे लिए उधारी पर, मनी लेंडर, आपने उसको इंटरेस्ट दिया, कैलकुलेट करना पड़ता है ना, ओके। हाँ, तो आई रिपीट, ये कैलकुलेशन के खर्चे ऑफिस में आते हैं, कैलकुलेशन के खर्चे। तो डेबिट में आएगा कमीशन पेड 6,000, डेबिट में आएगा इंटरेस्ट पेड 14,000। कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, ओके। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कब होता है एडवर्टाइजमेंट? देर आर सो मेनी व्हाट यू कॉल ऑटोमोबाइल्स, न्यू कार्स, विदेशी कार्स, फ्रेंच का है, इटली का है, ओके, जो इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं। तो भाई गाड़ी पहले बन जाती है, उसके बाद में उसका एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, ओके, क्योंकि गाड़ी का फोटोग्राफ तो लेना पड़ेगा हम लोगों को कि ये गाड़ी ऐसे दिखती है, ऐसे कलर उसमें ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो आई रिपीट माई सेल्फ, एडवर्टाइजमेंट अलग अलग स्टाइल के होते हैं। कभी कभी यूट्यूब चैनल पे एडवर्टाइजमेंट होता है, कभी कभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट होता है, कभी कभी आप गाड़ी चला रहे हो, रास्ते पे आपको बड़े बड़े बोर्ड्स दिखते हैं, वो भी एडवर्टाइजमेंट होता है। तो एडवर्टाइजमेंट मैन्युफैक्चरिंग के बाद होता है, मैन्युफैक्चरिंग के पहले you go to trading account, manufacturing के बाद you come to profit and loss account. So let me write on the debit side, क्योंकि ये खर्चा है मैन्युफैक्चरिंग के बाद। So behind me आपको ये रास्ता दिखता है, आपको ये बड़े बड़े बोर्ड्स दिखते हैं, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स 5,000। नेक्स्ट क्या है, कैरेज आउटवर्ड। व्हाट इज कैरेज आउटवर्ड? यू सी कैरेज इनवर्ड कम्स इन, आपको वो ट्रक याद रहेगा, ओके, उस पर बहुत सामान डाला गया था, वो रॉ मटेरियल ला रहा था। बट कैरेज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, जब आपका प्रोडक्ट बन गया और उसको कस्टमर तक पहुंचाना है तो वही ट्रक आ सकता है, बट अभी वो प्रोडक्ट लेकर जा रहा है, रॉ मटेरियल नहीं लेकर आ रहा है, ओके, आई रिपीट, प्रोडक्ट लेकर जा रहा है। तो इसके लिए उसको आउटवर्ड कहते हैं। जब एक ट्रक या एक कैरेज, ओके, या एक टेम्पो बाहर जाता है, इट टेक्स योर प्रोडक्ट एंड गोज टू द मार्केट टू बी सोल्ड, दैट इज आउटवर्ड। हाउ मच इज दैट? 9,000। सो कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में, बट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्लीज नोट, इफ यू आर थिंकिंग सर इतना बड़ा लिस्ट है, बाय हार्ट करना पड़ेगा, प्लीज बिल्कुल नहीं, बाय हार्ट तो कतई मत करना, ओके। There are so many problems, okay, गिन चुन के आई एम गेसिंग 20 प्रॉब्लम्स तो मिनिमम रहेगी, ओके। When this account, trading account, you repeat again and again and again, okay. Why are you good at eating? खाने में क्यों इतने अच्छे हो? क्योंकि आप दिन में उसको 2 बार 3 बार करते हो, खाना खाना खाना, ओके। अंधेरा भी रहेगा ना, जो उठाओगे सीधा मुंह के अंदर जाएगा। You get good at something, क्यों? You repeat it, you repeat it, you repeat it. So don't worry, by heart नहीं करना। I'm just explaining कि बाबा क्या आया था ट्रेडिंग में और क्या आएगा ऑफिस के अंदर। हाँ, तो इसमें कैलकुलेशन के खर्चे आ रहे या प्रोडक्शन के बाद के खर्चे आ रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन, what do I have? Bad debt. What do you mean by bad debt? जब कस्टमर जो होता है ना, वो मेरे पैसे लेकर भाग जाता है, तो वो नुकसान को कहते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट, ओके। देयर आर सो मेनी बैंक्स जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को, वेदर वो नीरव मोदी हो, वेदर वो विजय माल्या हो, ओके, देयर आर सो मेनी बिग 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 पीपल जिन्होंने लोन ले लिया और उसके बाद में लोन नहीं दिया, करोड़ों करोड़ों का नुकसान करा दिया बैंक का, उसको बैड डेप्ट कहते हैं, ओके। उसका फैक्ट्री के साथ में कोई कनेक्शन होता नहीं है। सो 50,000 बैड डेप्ट इज अ नुकसान, ओके। प्रोडक्शन के बाद कस्टमर बनता है और कस्टमर जब पैसे नहीं देता, बैड डेप्ट कहते हैं, ओके। सो दिस इज बैड डेप्ट। नेक्स्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी। प्रोडक्शन के पहले इंपोर्ट करते हो, प्रोडक्शन के बाद एक्सपोर्ट करते हो। सो एक्सपोर्ट ड्यूटी इज समथिंग जो प्रोडक्शन के बाद आता है, therefore you write it here, to export duty 15,000, okay। so again ये लिस्ट कंटिन्यू हो रहा है, अभी ये थोड़े हमारे
हमारा बोर्ड भर गया ना, तो थोड़ा इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं. सो लेट मी गो अहेड. आफ्टर दैट व्हाट कम्स लीगल चार्जेस. व्हाट डू यू मीन बाय लीगल चार्जेस? काफ़ी बार हमको पेपर वर्क, लीगल डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है. उसके लिए हमको लॉयर के ऑफिस में जाना पड़ता है. लॉयर का ऑफिस आपको थोड़े टाइम पहले याद रहेगा, एक सीन आपको दिखा जहाँ पे के ड्राइविंग लाइसेंस की एप्लीकेशन के लिए फॉर्म चाहिए था, तो वो तो ऑफिस में ही मिलेगा. हाँ, तो लीगल चार्जेस इज व्हाट यू पे टू अ वकील, जो फ्री का तो काम नहीं करता, क्योंकि वो हमारा मामा नहीं है, हमारा चाचा नहीं है. ओके, सो व्हाट यू पे टू द एडवोकेट और द लॉयर इज कॉल्ड एज लीगल चार्जेस. वो ऑफिस में काम करता है. 5500. नेक्स्ट, प्रोफेशनल चार्जेस. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल? देयर आर मेनी प्रोफेशनल्स. Okay, and depending upon what work do they do, what you see above, because we are situated with a situation where the pandemic of COVID is quite rampant, so it has been made very compulsory. What? Cleanliness, personal cleanliness, and if you're working somewhere, uska cleanliness. Okay, and not just पानी लिया पोस दिया, नो, सैनिटाइजेशन, पूरा सैनिटाइज होना चाहिए सो दैट द वायरस डज नॉट सर्वाइव. सो यू रिक्वायर प्रोफेशनल्स. अबाउ मैडम्स आर प्रोफेशनल्स. जो लोग साफ करते हैं तो एक भी कीटाणु बच नहीं पाता. ओके, सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोफेशनल. मैंने बस एक क्लीनिंग क्रू का एग्जांपल दिया है. एन आर्किटेक्ट इज ऑल्सो अ प्रोफेशनल. ही मेक्स योर ऑफिस लुक्स वेरी वेरी गुड. सो ये लोग ऑफिस में काम करते हैं. ऐसे नहीं कि फैक्ट्री में काम नहीं करते, बट ऑफिस में ज़्यादा इनका काम का असर होता है. हाँ, कितना था? 9500. 9500. नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 3500. बैंक डज अ लॉट ऑफ वर्क. आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए बहुत काम करता है. ओके, चेक जब आप देते हो तो चेक का पेमेंट करता है. चेक जब आप डिपॉजिट करते हो वो चेक को क्लियर करता है. तो बैंक विल टेक सम पैसा ना, क्योंकि बैंक अगेन हमारे मामा चाचा का तो है नहीं. ओके, हमारे ससुर का तो है नहीं. 3500. तो बैंक का जो भी खर्चा है वो फैक्ट्री के साथ नहीं कनेक्टेड होता है, वो ऑफिस के साथ कनेक्टेड होता है. नेक्स्ट, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस. व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी पैकिंग? यू सी, जो प्राइमरी पैकिंग होती है ना, सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस विल कम ऑन द डेबिट साइड. व्हाट इज इट? उसके लिए आप थोड़ा ऊपर देखो. सो यू कैन सी द कोलगेट टूथपेस्ट. जो टूथपेस्ट का एक्सटीरियर कवरिंग है दैट इज प्राइमरी, बट दिस बॉक्स दैट यू सी दैट इज सेकेंडरी. दैट इज मेड सो दैट इट लुक्स अट्रैक्टिव. when you go to buy, when you go to a departmental store, you see the box and you buy it. उस पर कोई ऑफर रहता है, 20 grams extra, 30 grams extra, minerals, salt, sugar, God alone knows what is put into a toothpaste nowadays. That makes it look attractive. तो वो एक एडवर्टाइजमेंट का भी काम करता है. ओके, therefore secondary packing. प्राइमरी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. ओके, बट सेकेंडरी जो एक अट्रैक्टिवनेस के लिए किया जाता है, दैट कम्स इन ऑफिस. 17,000. अच्छा, दिस इज द लिस्ट, सो लॉन्ग लिस्ट ऑफ व्हाट ऑफिस के खर्चे. देयर आर मेनी मोर, बट मैंने सिर्फ जो कॉमन होते हैं, जो थोड़े सिंपल है अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर, वो मैंने टेकअप किया है. नेक्स्ट, you'll see commission received, not paid, received. जेब में आया. मेरे पास जेब नहीं है अभी, बट जेब में आया तो अच्छी बात है. इनकम, डिस्काउंट रिसीव्ड 2000. इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड. यार रिसीव्ड से अच्छी फीलिंग आती है, पेड से अच्छी फीलिंग नहीं आती, बिकॉज पेड मतलब खर्चा हो गया, खर्चा हो गया, खर्चा हो गया. रिसीव्ड, हाँ हाँ हाँ, received is good feeling. Okay, so commission received, income, discount received, interest received. income. Okay, आपने कुछ काम किया किसी के लिए, उसने आपको कमीशन दिया. ओके, आपने किसी से कुछ माल लिया, प्रोडक्ट लिया, उस सप्लायर ने आपको डिस्काउंट दिया. आपने किसी को लोन दिया, उससे इंटरेस्ट मिला. सो दिस इज ऑल इनकम. देन यू सी डिविडेंड रिसीव्ड. अरे अच्छी बात है. डिविडेंड मतलब
आपने कंपनी में, कोई बड़े कंपनी में शेयर्स डाले, इन्वेस्ट किए, तो आपको वहां से डिविडेंड मिला. कंपनीज गिव यू डिविडेंड बिकॉज यू पुट मनी इन देम, यू इन्वेस्ट मनी इन देम. इनकम सीधा बैंक अकाउंट में आ जाता है. ओके. लास्टली रेंट रिसीव्ड. ओके, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑफ माइंड जो एक बैंक में काम करते. उनका बैंक एक पूरा बिल्डिंग में था, कुछ 11-12 माले की बिल्डिंग, 12-11 फ्लोर्स की बिल्डिंग. ओके, उन्होंने क्या किया, एज एंड व्हेन कोविड स्टार्टेड एंड पीपल कुड नॉट कम टू द ऑफिस, तो बैंक ने डिसाइड किया कि मैक्सिमम ऑफ देयर एम्प्लॉयज घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम. आपके मम्मी डैडी ब्रदर सिस्टर्स अभी करते रहेंगे. ओके, एंड बिकॉज 12 माले की बिल्डिंग में मोर देन 50% स्टाफ घर से काम कर रहे हैं, तो बिल्डिंग खाली. तो उन लोग ने क्या दिमाग लड़ाया, उन्होंने बोला अरे 4 फ्लोर्स में हमारा काम हो जाता है, अपना स्टाफ बैठ जाता है, बाकी 6 फ्लोर्स खाली. उन्होंने वो भाड़े पे दी. दे गिव इट ऑन रेंट एंड नाउ दे आर रिसीविंग रेंट. इनकम ना, अच्छा कमाई हो रहा है. हाँ, सो आई रिपीट, रिसीव्ड इज एन इनकम. क्रेडिट साइड पे आएगा. ये पूरा लिस्ट जो है ना, अभी इनकम का है, अभी मैं इसको क्रेडिट में लिखता हूं. सो ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे कमीशन रिसीव्ड, कैलकुलेशन, प्लीज नोट कैलकुलेशन, देयरफॉर इट मस्ट कम इन द ऑफिस. 1000 डिस्काउंट रिसीव्ड, 2000 इंटरेस्ट रिसीव्ड, 3000 डिविडेंड मतलब जो कंपनी से मिलता है, 4000 एंड इफ यू हैव अ टेनेंट तो उसे रेंट मिलेगा, 5000. तो प्लीज राइट ऑल ऑफ दिस. यू कैन पॉज लिख लो, बिकॉज आफ्टर दिस मेरा लिस्ट खत्म हो गया ऑफ एक्सपेंस एंड इनकम, ऑफिस के एक्सपेंस एंड इनकम. अभी हमको ये टोटल करना है, बिकॉज व्हेन वी डू द कास्टिंग टोटलिंग देन वी गेट एन आंसर. बिकॉज आप लोग भी बोलोगे सर कितनी मेहनत की मैंने, कितना चीज लिखा, व्हाई डिड आई डू दैट. फाइनल अकाउंट्स का एक मेन पर्पस, व्हाट, प्रॉफिट. प्रॉफिट की खुशखबरी कब मिलेगी हमको सर, लेक्चर इतना लंबा हो गया सर आपका. ओके, मेरे को कब खुशखबरी मिलेगी. बाबा अभी इसको टोटल करेंगे तो खुशखबरी आ जाएगी. सो बिफोर आई गो अहेड, टोटलिंग कैसे करते हैं. अभी पेन पेंसिल ले लो, सर कैलकुलेटर ले लो. अरे नहीं, आपको अलाउड नहीं है. ओके, मैं एनकरेज नहीं करूंगा आपके लेवल के लिए जब तक वो परमिशन आपको अथॉरिटी से नहीं मिलती. सो प्लीज ऑनेस्टली पेन ले लो, पेंसिल ले लो, एड इट अप. डेबिट टोटल करो, क्रेडिट टोटल करो. ओके, व्हाट इज द डेबिट टोटल, आई डोंट नो, आई एम गिविंग इट टू यू, आप लोग कर लेना. 10,000 plus 8,000 plus 6,000 plus 4,000, so the debit total comes to 2,04,500 top to bottom. Credit total, this is rough work, please remember that green color में जो लिखा है, okay, वो rough work है. Here credit side, income का total 12,15,000. I repeat myself, income का total. So दो टोटल है, एक्सपेंस, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम. इनकम तो बहुत भारी है, अच्छी बात है ना. इनकम भारी रहेगी तो ही तो मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा. सो नाउ व्हाट यू डू, आप आपके पेपर पे नोटबुक में 12,15,000 माइनस 2,04,500 यू विल गेट एन आंसर. वो कहाँ पे लिखे, क्रेडिट भारी है तो वो दोनों साइड पे लिख देते हैं, 12,15,000, 12,15,000. The subtraction answer will come in the difference, which is 10,10,500. And खुशखबरी, आप रुके थे ना खुशखबरी के लिए, this is the खुशखबरी, net profit carried down. I repeat, the previous problem of Mr. Pyarelal was a different problem. It's not connected to this one. ये Mr. Lovely का problem है, उसमें भी आंसर lovely है. Okay, उधर gross profit. So if somebody would ask you, ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाते, अरे ग्रॉस प्रॉफिट के लिए. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते, नेट प्रॉफिट के लिए. हाँ, कभी कभी ग्रॉस लॉस उधर और नेट लॉस इधर आ सकता है. अच्छा, इसके बाद व्हाट इज डन, नॉर्मली अ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विच आई हैव ऑलरेडी थॉट यू, एंड देन अ बैलेंस शीट. टुडेज प्लान वाज with the images above, with the few clippings previously, to tell you, okay, what does an office look like
and what happens in an office. कौन से खर्चे, कौन से कमाई. Okay, so that थोड़ा you understand. Okay, it settles down in you. Okay, यहाँ पे digest हो जाता है कि ऑफिस का कॉन्सेप्ट क्या है. The next time I meet you, the concept that I will be explaining to you will be of बैलेंस शीट, नॉट दिस वन, ये तो ऑफिस है. ओके, बट बैलेंस शीट में क्या आता है, एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, वो हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम कवर अप करेंगे. ओके, सो आज के लिए आई होप द क्वेश्चन दैट वाज एक्सप्लेन टू यू वाज अंडरस्टूड, and if it was understood by you, I would highly appreciate it if you like the lecture video. And always remember, as in when the textbook question answers start, the question and the answer in the PDF format will be available in the description below, as well as on the Telegram channel. The entire chapters PDF will be available. Usko download please kar lena. Obviously there are no charges for that. It will help you immensely. Like the video, subscribe to the channel, press the bell icon so that you are notified. Also share the news of this channel with your friends and relatives जो किधर भी रहते, it doesn't matter, उन लोग बस this chapter has to be there for them. It will be definitely useful to them and it would also provide the necessary support to the channel. Okay, कुछ comments रहेंगे, आपके doubts रहेंगे, तो comments के डब्बे में लेक्चर का आप लिख लेना, so that I can get back to you via an answer reply to that particular comment. तभी तक के लिए next time तक, this is Steven sir, this is a goodbye from me. Please take care of yourself, take care of your seniors and juniors. I will meet you very very soon with the continuation of the next part of final accounts, which is going to be the balance sheet. तब तक के लिए good day to all of you. God bless. Bye for now.